Good morning, class. This is Anurag Bharat. In and that is our lecture fourth of chapter first. In previous third lecture, we already discovered about the Carnatic War between the French and Britishers. So, in that particular lecture, we will talk about Battle of Plassey in 1757. So, लेट स्टार्ट इट ब्रीफ नॉलेज इसका ये है बेटा। उस समय जब बंगाल जो रीजन था, बंगाल रीजन जो था उस पर जो ब्रिटिशर थे वो अपना कब्जा करना चाहते थे, अपना राइट्स चाहते थे। तो उस समय उन लोगों ने क्या किया बेटा, उस समय जो उन्होंने क्या किया कि जो क्लाइव थे, क्लाइव कौन थे उस समय, क्लाइव उस समय रूलर्स थे उस समय, ठीक है। क्लाइव क्लाइव ने क्या किया बेटा, उस समय जो उस समय लोकल किंग थे मीर जाफ़र, उनको रिप्लेस कर दिया शुजाउद्दौला से। क्यों बेटा? क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ उस किंगडम पर ऐसा ऐसा किंग रूल करे जो उनकी बात माने, उनको पैसा ला ला के दे। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते बेटा। विद द साइनिंग द ट्रिटी ऑफ अलीगढ़, मोस्ट of English demand were the fulfilled by wanted control over the Bengal. They in Clive occupied the French colony Chandranagar, and can't stop him. Clive made secretly pact with the Mir Jafar, who was replaced by Suraj as Nawab of Bengal. After the conspiracy to protect for the war of reached, Nawab was accused by dishonor treaty of Ali Nagar, and soon army under the Clive set Murshidabad. A battle between Nawab and Britisher force in Plassey 23rd जून 1757। ओके बेटा, ये था आपका बेटा। आप ये आपके लॉन्ग सेकंड का आंसर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा होता है बेटा? बैटल ऑफ बक्सर। वेल, मीर कासिम रियलाइज his position of depending on the British company. He began to consolidate Babur. He dismissed loyal official of English. He built a new military setup and abolished the custom duties. These steps proved disastrous of the company. Finally, the battle fought in 1763. Mir Qasim was defeated by the company, and again with and again Mir Qasim comes to Nawab Awadh. Soyadullah was also the British and Shah Alam, Mughal Empire, had taken refuge in Awadh. The three alliances clashed with the company army at Buxar on 23rd October 1764. They were defeated by Swajaudullah and Shah Alam in 1765, signed the treaty with Clives। और इम्पोर्टेंट ट्रिटी साइन हुई बेटा उस समय, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते, क्या बोलते बेटा? इलाहाबाद ट्रिटी, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट था बेटा, द इंग्लिश वर टू गेट 50 lakhs कंपनसेशन फॉर द बार ऑफ अवध। जो बार हुई थी बेटा, उसके लिए कंपनसेशन कितना? 50 lakhs का, ठीक है बेटा। सेकंड था क्या? द नवाब ऑफ अवध कॉन्केटेड इलाहाबाद एंड कारा एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ मुगल एम्पायर शाह आलम, ठीक है। थर्ड था बेटा, द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट। ब्रिटिशर को चुनार फोर्ट दे दिया जाए, ठीक है। ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टेक फ्री ट्रेड्स इन अवर टेरिटरी। उनके पास फ्री ट्रेड का राइट्स होना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ आपको मुगल एम्पायर शाह आलम का फ़ोटो दिख जाएगा, ठीक है बेटा। Then three Anglo-Mysore war, the Anglo-Maratha war was end with Treaty of Madras. The Anglo-Maratha war end with Treaty of Madras 1769, and also the third war between Anglo-Maratha was end with Srirangapatnam Treaty, पट्टनम ट्रिटी, ठीक है बेटा। और सेकंड आंग्लो मराठा वॉर वाज एंड विथ मंगलूर ट्रिटी इन 1784, ठीक है बेटा।
Then most important point, Lord Wellesley was appointed the governor. Lord Wellesley was appointed the governor. Wellesley, important, right and work. Governor General of India in 1798, and he started consolidation with British Empire in India. He declared to bring many Indian state as possible as British rule. He began to align Indian state with companies, bar and treaty. Lord Wellesley, Lord Hardinge, Lord Dalhousie play the vital roles in expansion in India. बेटा इसको आप मेमोराइज करें. द फॉलोइंग वर साइलेंट फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी उस समय बेटा एक इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस किया. किसने बेटा? लॉर्ड वेलेजली ने. किसने बेटा? लॉर्ड वेलेजली ने. ठीक है, इसको आपको नोटबुक में लिखना भी है, मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिया है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं. अंडर द सब्सिडरी अलायंस द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज कंप्लीट टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनरी ऑफ ब्रिटिश फोर्स. आपको क्या उस समय जो किंग्स थे उनको इस अगर ये ट्रीटी पर वो साइन करते हैं तो उनको अपने अंदर क्या रखना पड़ता था बेटा? ब्रिटिश फोर्स को रखना पड़ता था, ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ता था. दूसरा क्या था? द रूलर हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फोर्स टू प्रोवाइडिंग. उसको जो रूलर, जो भी उस समय जो इंडियन रूलर होते थे, उनको फिक्स अमाउंट मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता था स्टेट को, कंपनी को. ठीक है बेटा. थर्ड पॉइंट इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द इंडियन रूलर हैड टू कीप एट हिज कोर्ट. उसको कोर्ट में किसको बेटा? ब्रिटिश ऑफिसर को रखना पड़ता था. हु कुड ऑब्जर्व वर्किंग ऑफ स्टेट. ये 3 पॉइंट आपको सब्सिडरी अलायंस के याद करना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.